Hello everyone, welcome to InstaSol live session. Myself Himanshu Parikh and I am physics expert at InstaSol. So today is our lecture number 1 on simple harmonic motion. As you guys have demanded कि sir SHM पे कुछ lectures लीजिए. So this is a session number 1 on simple harmonic motion. Alright, so who all are present today? Say me hi in the chat box guys. Antra, hi. Amit. Hi Amit. Hello Rohan. Hello Pooja. Hello Prateek. Right, so I can see a lot of people in the chat box today. That's nice. Hi John. Yes, hello everyone. Alright, so today we'll be starting with simple harmonic motion. So I hope you guys must have studied kinematics before this. Alright, so few concepts of kinematics like simple terms, velocity, speed, acceleration, position, all these things we are going to use once again in this chapter. Okay, so clear this part, no doubt? Yes, video is playing. You can refresh it. Just go back and come back to app. It will appear in your account. Hi Kiran. Alright, so let's start with today's session and first let me take you through the basics of simple harmonic motion. So in simple harmonic motion you write the equation as x is equals to a sine omega t plus phi. Yes, all of you? A sin omega t plus phi. वीडियो प्ले नहीं हो रहा तो एक काम कीजिए आप रिफ्रेश कीजिए सेशन को इट विल स्टार्ट ठीक है चलिए हेलो राशि शानदार जोरदार जबरदस्त विजय एसएचएम ओके थैंक्स अ लॉट सो x इज इक्वल टू a sin omega t plus phi ठीक है दिस इज द सिंपल इक्वेशन व्हाट इज x हियर x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ठीक है x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल What is A? A is the maximum displacement of particle from mean position. अब mean position का मतलब क्या हुआ? Mean position does not mean x equal to 0. पहले तो ये सब लोग लिख लो, ठीक है? That mean position does not mean x is equal to 0. Okay, you want to derive this equation? Okay, I'll give you the derivation also, no problem. All right. So mean position means it is exactly equal to the equilibrium position. Equilibrium position means what? The position where net force is acting on the particle or on the system is 0. That is known as the mean position. Clear? Okay. What is the proof, sir? All right, we'll come to the proof part also. Okay. So first let me tell you all the parameters here. X is equal to a sin omega t plus phi and all. Okay. What is A here? A is the maximum displacement of particle from mean position, from the equilibrium position. Omega is the frequency, right? 2 pi multiplied nu. It's angular frequency. And then t is anytime t, phi is the phase. So this phi is known as the initial phase. This complete term is known as phase. This complete term, bracket. Okay, yes, I'll tell you the derivation also, Chetan, don't worry. And this phi is known as initial phase. So basically phase is very important thing in simple harmonic motion. ठीक है? Why phase is important? Because it will tell you what is the position of particle at any time t. है ना? So if I give you phase of the simple harmonic motion particle, you can tell me कि what is the position of particle. सही बात है या नहीं? ठीक है? We should do one thing. You just refresh the session. It will play. Don't worry. ठीक है? All right. So people who are asking कि सर इसका डेरिवेशन क्या होगा तो डेरिवेशन के लिए आपको हिंट दे देता हूँ सिंपल सा डेरिवेशन है कि देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे तो इट्स अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी के लिए एक और वर्ड है इट्स नोन एज हार्मोनिक मोशन ठीक है हाँ ठीक है अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फेज एंड ऑल हेलो रजनी हाउ आर यू सो if any particle is moving in one dimension along a line, then that is known as the simple harmonic motion, to and fro motion about a single point. About a single point, if a particle is performing to and fro motion, ठीक है जैसे मान लो this is the equilibrium position. Now this particle is going in the right, okay, and then it is going in the left. Again it is going in the left, and then it is coming back. तो ये क्या हो गया आपका complete oscillation हो गया. This is a complete oscillation. ठीक है so after this complete oscillation particle is coming back to the original position right so particle who performs this kind of motion is known as simple harmonic oscillator
ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. अच्छा, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर? बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू आर डीलिंग विद द atomic physics, molecular physics, कि atoms are connected to each other with a bond and they are vibrating about their mean position. ठीक है ना? So you will be doing this कि one dimensional chain, two dimensional chain, उसमें फिर different categories होती हैं. ठीक है? Sir, please answer Rajni's question. Sir, for 11th student, which book is physics is best for questions? Okay, practice question के लिए तो रजनी you can go for S.C. Verma, D.C. Pandey, there are many books. ठीक है? बट अगर आपको थ्योरी कवर करना है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू एनसीईआरटी. ठीक है, और बाकी लाइव लेक्चर्स तो ही इंस्टा सोल पे. इफ वीडियो इज अनेबल टू प्ले देन यू कैन डू वन थिंग. yes MSD 60 I will be completing the chapter. We will have 6 to 7 lectures on SHM, don't worry. Okay, so the force acting on particle is proportional to minus x. So if the force acting on particle is proportional to minus x, then particle will be performing this kind of motion. किस तरह का मोशन? डांसिंग, मतलब ऐसे. ठीक है, इट इज गोइंग लेफ्ट कमिंग बैक. तो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस माइनस साइन? दिस माइनस साइन इज टेलिंग यू कि द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलवेज. ठीक है, जैसे पार्टिकल इज, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. नाउ पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. So particle is going in this direction, that is fine. That is the direction of velocity of particle. ठीक है, but if you see the force acting on particle, it is towards mean position. तो सबसे बेस्ट होता है कि आप लोग इसको स्प्रिंग से समझ लो, है ना. Let's say we have a spring and block is connected to spring. If you stress the spring, what will happen? block को आपने पकड़ के ऐसे कर दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा? The block will be going in leftward direction, rightward direction, but जो spring force है that is in leftward direction. तो spring force opposite है. ठीक है, it's towards the fixed mean position. ठीक है, and now when it is coming back again the force is toward mean position. अब यहां से जब वो लेफ्ट में जा रहा है तब क्या होगा? जब वो लेफ्ट में जा रहा है again the force is acting towards mean position. ठीक है, and when it is coming back again force is towards mean position. तो ये तो हो गया mean position की कहानी कि मतलब फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. अब देखिए, अब जो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू गाइस विच यू हैव ऑलरेडी डन इन किनेमैटिक्स कि वी हैव ए वेरिएबल फोर्स. ठीक है, दैट मीन्स वी हैव ए वेरिएबल एक्सेलरेशन, है ना. तो इफ यू हैव वेरिएबल एक्सेलरेशन देन आई कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन यूज ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. ठीक है, right, so told for question SCB and DC Pandey, for theory it's NCERT. All right, so you can follow that, that's good. Okay, all right, so now F is equal to minus kx. So if F is equal to minus kx, and now I know what is the force. Force is equal to mass times acceleration, है ना, simple सी बात है. If mass is constant, then I can write force is equals to mass times acceleration, and that is equals to minus kx. अभी देखिए, अभी कुछ लोग डेरिवेशन पूछ रहे थे इसका, सो आई विल जस्ट डिराइव इट हियर. ठीक है, मतलब कंप्लीटली डेरिवेशन तो नहीं देंगे आपको, मैं एक हिंट दे दूंगा कि ऐसे डिराइव कर सकते हो. ठीक है, यू स्टार्ट टू इंटीग्रेट दैट पार्ट, आपका आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहेगा? ठीक है, तो देखो करना क्या है इसमें. एक्सेलरेशन का एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला तो क्या डेफिनेशन है कि जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, है ना. इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन, yes you can call this as a restoring force because it is restoring the position of particle, है ना, मतलब towards the equilibrium position उसको लाना चाह रहा है वो. तो ये force कर क्या रहा है? This particle is bringing the particle, this force is bringing the particle towards the mean position, and that's why you can call it restoring force. मतलब energy को restore कर रहा है वो फिर से. ठीक है, okay. So if I multiply and divide this equation with dx, तो I don't think कि इस equation की सेहत पे कोई असर होने वाला है ना. I have just multiplied and divided with dx. All right? Okay. So now, if you see this term, carefully, dx by dt. So what is dx by dt? This dx by dt is known as velocity. ठीक है? This dx by dt is known as velocity. So acceleration को मैं लिख पा रहा हूँ v dv by dx. सही बात है? Acceleration is v dv by dx. Sir, video is not running properly, so how will I study? Just refresh the session, Sanjeet,
right? You do one thing, you press the back button and then again enter in the session. It will play for you. ठीक है? Sorry for the interruption. Okay, so acceleration is equal to v dv by dx. This is the acceleration expression. Now I am going to use this acceleration. What is acceleration? It's equal to minus kx by m. ठीक है, and this is equal to v dv by dx. अब कितने लोग इस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं? अब तो सिंपल हो गया ना, मैथ्स का क्वेश्चन है. माइनस के बाई एम, ठीक है, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी. ठीक है, इज इक्वल टू वी डी वी. ओके, नाउ यू सी दिस के बाई एम को एक कांस्टेंट मान लेते हैं. Why? Because k is the constant. It's a property of that force, है ना, जो भी force. Very good, Rajni. So you can do the integration. So this you can call omega square. So minus omega square x dx. ठीक है ना? This is v dv. Okay. So now what you have to do is, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से करोगे आप कि लिमिट्स भी रखना पड़ेगा. So let's say particle is starting at t equal to 0, it is at x equal to 0, ठीक है, and velocity is some v naught, ठीक है ना. Okay, so at t equal to 0, so x is equal to 0 and it is going to some other random position x, because मुझे x के terms में कुछ expression चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. And now velocity, I don't know what is the velocity at t equal to 0, so I'll start from v naught and I'll integrate till v. अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म कोई बता पाएगा क्या? व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर दिस टर्म? माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, दिख रहा है ना, बट x इज वेरिएबल. सो x dx, x टू द पावर 1 लीनियर पावर है, तो x टू द पावर कुछ बताओ क्या होगा? 2 3 बाय कुछ समथिंग आएगा, तो सोचो जरा और इसको इंटीग्रेट कर लो. x square by 2, right? Correct, Yogesh, Mohit. x square by 2. Answer would be x square by 2. ठीक है. So देखिए, अब अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में x और v के अंदर एक रिलेशन बनता है. ठीक है, x और v में आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा और वहां से आप लोग बड़े ही प्यार से लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, एंड नाउ इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, मतलब सॉरी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. हाउ ओमेगा स्क्वायर केम सर? देखो ओमेगा स्क्वायर इज द कांस्टेंट. ओमेगा स्क्वायर इज द कांस्टेंट which is what is the value of omega square? It's k by m. All right, value of omega square is k by m. I have just assumed it. If you remember, I wrote there k by m. ठीक है, so k by m will become what? Omega square. मैंने इसको assume किया, it's a constant. ठीक है, और बाद में पता चला कि it's angular frequency. ठीक है ना, so that's the beauty of this equation. So dx by dt is equal to omega under root a square minus x square. So dx by dt is equal to what? Omega under root a square minus x square. All right. Now again, what you will do? You want to find out the relation between x and t. So dx upon under root a square minus x square is equal to omega dt. Again, you can integrate this from 0 to t, right? And then again you can integrate this from 0 to x. Yeah, x naught say x. If equilibrium position is not x equal to 0, then you can sorry, if particle is not starting from 0, then you can put x equal to x naught, but that will become little bit lengthy. ठीक है ना, तो वो सब करना जरूरी नहीं है, right? All right, so this part is clear to everyone. अब देखो इस पार्ट का इंटीग्रेशन कोई बता पाएगा क्या? What is the integration of 1 over square root of a square minus x square? तो थोड़ा मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे शांत हो जाएंगे, है ना. तो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम मैथ स्टूडेंट कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन. यस जॉन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर दिस?
वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है रामकरण ने. रामकरण इज आस्किंग कि सर टू फाइंड, हाँ, टू आइडेंटिफाई वेदर दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट, व्हाट वी शुड डू. देखो मैं आपको सिंपल पेंडुलम एक केस करवाऊंगा, ठीक है, एंड देन आई विल टेक वन क्वेश्चन कि वी हैव वन चार्ज पार्टिकल, ओके, एंड इट इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अनदर चार्ज पार्टिकल, ओके. So this particle will be performing simple harmonic motion. अब कैसे कर रहा होगा? So उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहता है कि आप नेट फोर्स निकालिए, यू कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ओके, एंड फ्रॉम देयर यू कैलकुलेट एक्सेलरेशन. इफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देन इट्स डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्लियर? साइन इनवर्स नॉट बैड. किसके रेस्पेक्ट में करना है? देखिए आपके पास सब कुछ है, dx है ना, dx आ जाएगा इसका, तो इसका इंटीग्रेशन रहेगा साइन इनवर्स x बाई ए. वेरी गुड, MSD 60, दैट्स राइट आंसर. राशि, नो दैट्स नॉट करेक्ट आंसर. तो कुछ लोग यहाँ पे चेन रूल लगा रहे हैं, चेन रूल नहीं लगेगा. साइन इनवर्स x बाई ए, यू कैन जस्ट सी दिस फॉर्मूला, ठीक है. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू गाइस हैव ओमेगा टी. So this will become sine inverse x by a and it is equal to omega a. सही है ना? Sine inverse x by a equal to omega a. तो यहाँ तक समझ में आएगा सब लोगों को कि मैंने जब बस इसको इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है, सही बात है. अच्छा देखो, अगर मैं लिमिट्स लेता x नोट टू x तो क्या चेंज आता? इंटीग्रेशन तो ये रहता, बस लिमिट्स यहाँ पे क्या डल जाती, x नोट से x. ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है कि इफ आई टेक इनिशियल पोजीशन एज x नोट, ठीक है, इंटीग्रेशन वुड बी sin इनवर्स x बाई a ओनली, ठीक है. बट इफ इनिशियल पोजीशन इज नॉट x इक्वल टू 0, इफ आई टेक इनिशियल पोजीशन एज x इक्वल टू x नोट, तो क्या चेंजेस आएंगे? देखो, तो आई विल राइट sin इनवर्स x बाई a माइनस sin इनवर्स x नोट बाई ए, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी. तो इसको एक बार लिख लो सब लोग. हेलो समीक्षा, यू आर लेट. एनीवे दैट्स फाइन, वी आर डिराइविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. ऑलराइट, इनवर्स, सॉरी, इनवर्स. सो दिस इज साइन इनवर्स x नोट बाई ए. नाउ सी, a इज कांस्टेंट, ठीक है, x नोट इज व्हाट, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. और मैंने आपको बताया था कि आई हैव रिटन वन टर्म फाई इन द इक्वेशन. तो वो फाई क्या होता है? वो फाई आपका यही होता है, दिस वुड बी सम एंगल फाई, ठीक है. इसको मैंने कुछ थीटा फाई कुछ एंगल बोल सकते हैं. तो ये क्या इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है अपने साथ, समझ लेंगे ये सब लोग भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इंटीग्रेशन में चैन रूल नहीं होता है, इंटीग्रेशन में चैन रूल नहीं है, थोड़ा इंटीग्रेशन रिवाइज कर लो, ठीक है. दैट इज फॉर डिफरेंशिएशन. ओके, साइन इनवर्स x नोट बाई a, ठीक है. सो साइन इनवर्स x नोट बाई a, दिस इज सम एंगल थीटा, राइट, बिकॉज देखो साइन इनवर्स 1 बाई 2 इज पाई बाई 6. तो साइन इनवर्स कुछ भी होगा, इट विल गिव यू एंगल. एंड व्हाट इज दिस एंगल? इनिशियल फेज. It is initial phase. Why it is initial phase? Because it is containing the information about initial position of the particle. So this part is clear to everyone कि why we are calling it initial phase? Sin inverse x naught by a, right? So how k by m becomes omega squared? That I have assumed, John. Again I am repeating. That was my constant. Because k by m both are constants. Omega square would be another constant. This is x upon y या a upon b. A upon b एक constant है, ठीक है. So what I can say, I can replace this with another constant c, ठीक है, right? So this is my initial phase. Now what I can write from here is sin inverse x by a is equal to omega t plus phi, omega t plus phi. And now if you take sin on both sides, what it will become? If you take sin on both sides, then it will become x naught by x by a
इक्वल टू साइन, ठीक है ना, देख लेंगे सब लोग, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. Okay, and now this a you can take on the right hand side, this will become a sin omega t plus phi. तो ये निकल के आ गया जिसका था हमें इंतजार. ठीक है, so this is the position of particle with respect to time. ठीक है ना, बड़ा ही सुंदर सा रिलेशन निकल के आया है. अब ये एक बहुत अच्छा रिलेशन है. तो यहां से पता चलता है कि जो लोग पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज ओमेगा हियर, ठीक है ना, और यहां से मैथमेटिकली हमें पता चल रहा है कि दिस ओमेगा विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ द पार्टिकल. ठीक है ना, तो जो पीरियडिक मोशन होता है उसका पीरियड क्या होगा, तो यहां से मैं बड़ी आसानी से बोल पाता हूँ. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होता है ओमेगा का. अदरवाइज यहाँ पे क्या आता, अगर इफ आई एम नॉट राइटिंग ओमेगा एज रूट के बाई एम, यहाँ पे निकल जाता है रूट के बाई एम, तो उसको एक अलग से नाम दे दिया. और नाम क्यों दिया अलग से, तो उसका खासियत ये है कि देखो जैसे कोई भी आप साइन फंक्शन लिखते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे फेजर डायग्राम कर लेंगे, विल डू फेजर डायग्राम इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, डोंट वरी, वी विल हैव 6 to 7 लेक्चर्स ऑन एसएचएम. ठीक है सर, हाउ ए कांस्टेंट बिकेम स्क्वायर, व्हिच कांस्टेंट बिकेम स्क्वायर इज जोन. x is equal to a sin omega t plus phi. Just follow the steps, John. Right? You can go back and watch the video. What I have done is I have assumed k by m as omega square. All right. And now here it is coming out to be omega. ठीक है? Okay. So now what you will get is sin. इसकी एम्पलीट्यूड्स पर जेई के क्वेश्चन आते हैं क्या जी? बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं. अभी कर लेंगे थोड़े बहुत जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं. ठीक है, तो देखो साइन अगर मैं लिख रहा हूं 2 पाई टी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 2 पाई टी, दिस इज ओमेगा हियर. You can just compare the equation. So this is basically telling you about the period of the function. ठीक है, तो मतलब ये काफी पीरियडिक फंक्शन है, ये आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है उस चीज की. ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा फॉर दिस इक्वेशन, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अपॉन ओमेगा. आप लोग ऐसे निकालते हो ना मैथ्स में पीरियड ऑफ द एनी फंक्शन कि साइन ए टी प्लस कुछ लिखा हुआ है साथ में, तो आप उस ए को डिवाइड कर देते हो टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई से. ठीक है, तो जनरली साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है 2 पाई. नाउ यू कैन जस्ट डिवाइड इट विद ओमेगा. ठीक है, सो 2 पाई ओवर ओमेगा. हेलो पिया. ओके, सो एज इन पेंडुलम पीरियडिक, हाँ सिंपल पेंडुलम एक अप्रोक्सीमेशन के बाद पीरियडिक आता है. आई मीन पीरियडिक मतलब सॉरी, अगर मैं बात करूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की, पीरियडिक तो होगा बट इट वोंट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन. यू हैव टू टेक वन अप्रोक्सीमेशन देयर. ठीक है, कि वो ऑलमोस्ट लाइन के अलोंग चल रहा है. सो दैट विल डिस्कस इन पेंडुलम चैप्टर. ठीक है, so now you can analyze this equation ki what is a here. A is the maximum displacement from mean position. A is the maximum displacement from mean position. And what is omega here? Omega is the angular frequency. ठीक है, and phi is the initial phase that we have already discussed, right? Okay, तो अभी देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ और देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं. तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो देख पाते हैं कितने लोग कर सकते हैं. x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी. ठीक है, so x is equal to sin omega t plus sin 2 omega t plus sin 3 omega t. ठीक है, and you have to calculate period of this function. कि what is the period of this function? Okay, Pia, I forgot your sum with. So many times omega की वैल्यू 13 पाई बाई 2 आ जाता है, उसे सोल्व कैसे करूं? So there is no issue, Ramkaran. You can just use omega as 13 pi by 2, whatever is given in the question, right? Okay, so now you tell me what is the period for this equation. X is equal to sin omega t plus sin 2 omega t plus sin 3 omega t. ठीक है, all of you please try this question. It's a good question actually. ठीक है, but कुछ लोग इसमें भी शांत हो जाते हैं.
फॉर्मूला यूजिंग इट, फॉर्मूला तो कोई है नहीं यार, देखो मैथ्स में पढ़ा हो तो आई डोंट नो, बट इन फिजिक्स यू हैव नो फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, बस कॉमन सेंस लगाना है इस क्वेश्चन में। We can easily derive by taking any two terms. नहीं, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर, जीरो होगा। नो, पीरियड टोटल टाइम सर, टोटल टाइम नहीं, हाँ टाइम पीरियड बोल सकते हो आप। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड पार्ट। सर कैन यू सोल्व इन स्टैटिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक यू आर टॉकिंग अबाउट, or you're talking about statistical mechanics? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। Shall I tell you? Shall I solve this question now or you guys need more time? नहीं देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि what is the time period, और आप मुझे कुछ और ही बता रहे हो, है ना। आप तो कुछ साइन का फंक्शन लिख रहे हो। नहीं, 2 पाई बाय, ओके आई एम गिविंग यू 1 more minute समीर देन। 2 पाई बाय 3 ओमेगा इज रॉन्ग आंसर। No, that's wrong answer. Rohan has given the right answer. It's 2 pi by omega. That is correct. Very good, Rohan. Megha has also given the right answer. Pi upon t. What is t then, Sameer? t को include नहीं करना ना टाइम पीरियड में. t is a variable, है ना. So देखिए, this is a function of containing 3 sine terms. ठीक है, अब देखिए साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये 2 पाई ओवर ओमेगा है, इसका टाइम पीरियड इंडिविजुअली। फॉर दिस फंक्शन व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2 पाई ओवर ओमेगा। फॉर दिस फंक्शन व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2 पाई ओवर 2 ओमेगा, दैट विल बिकम पाई बाय ओमेगा। एंड फॉर दिस वन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? 2 पाई ओवर 3 ओमेगा, ठीक है। सो देखिए मैं क्या लिख पा रहा हूँ यहाँ से, आई कैन राइट एज T2 इज, सॉरी T1 इज 2 times T2, okay, 2 times T2, right? Yes, John, I'm solving it. You can concentrate in the class. So, what is T1 and by T3? T1 by T3 would be 3, right? T1 by T3 would be 3. So, T1 is equal to 3 times T3. Yes or no? These relations are fine. Yes, all of you? So is this correct कि T1 is 2 times T2 and T1 is 3 times T3. तो देखो अगर आप T2 की सुनो, so what T2 will say कि after pi by omega time I will repeat my values, ठीक है। So can I say that after 2 pi by omega time also it will repeat the values? भाई देखो जिसका टाइम पीरियड T है तो कोई चीज़ अगर 10 सेकंड के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है, so after 10 second is it is repeating, after 20 second again it will have same value, after 30 second it will have same value, again after 40 second it will have same value. So can I say that कि after 20 second it has same values? देखो सबके लिए कॉमन टाइम पीरियड देखना पड़ेगा ना. So for this one time period is 2 pi over omega, है ना. So that means for T2 it will repeat the values after pi by omega time, ठीक है. So that means it will repeat the values after 2 pi by omega also. It will repeat the values after 3 pi by omega also. सही बात है ना, ठीक है. So what I will say is कि
इसकी वैल्यूज रिपीट होगी 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के पास में, ठीक है, वो बोलना भी सही है 2 पाई बाय ओमेगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे आप बोल सकते हो कि T3 के लिए, कि T3 कह रहा है कि आफ्टर 2 पाई बाय 3 ओमेगा आई विल रिपीट माय वैल्यूज, आफ्टर 2 पाई बाय 3 ओमेगा आई विल रिपीट माय वैल्यूज। तो इसके जब तक 3 टाइम जाएंगे, इसके जब तक ये 3 टाइम्स चला जाएगा 2 पाई बाय 3 ओमेगा प्लस 2 पाई बाय 3 ओमेगा प्लस 2 पाई बाय 3 ओमेगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, एग्जैक्टली दिस। तो मतलब ये सबसे बड़ा इंटरवल है, इसका टाइम पीरियड सबसे बड़ा होगा, फिर इसके बाद इसका छोटा होगा, ठीक है, उसके बाद फिर सबसे छोटा इसका होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो किसकी सुनेंगे हम लोग कि तीनों को एक साथ रिपीट करना है वैल्यूज को, एवरीवन शुड रिपीट द वैल्यू एट द सेम टाइम। तो कब होगा देखो, ये बोलेगा कि 2 पाई बाय ओमेगा के बाद, ठीक है, इसको कुछ वैल्यू ले लो, मान लो 5, ठीक है, एंड देन दिस इज सर हाउ T2 इज 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दिस इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई ओवर टी, ठीक है, ओमेगा इज 2 पाई ओवर टी, और यू कैन राइट 2 पाई मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज 2 पाई बाय ओमेगा, दिस इज 2 पाई बाय 2 ओमेगा, और दिस विल बिकम पाई बाय ओमेगा, दिस इज 2 पाई बाय 3 ओमेगा, सही है, ओके। So let's say this 2 pi by omega has value 5, ठीक है, this 2 pi by omega has value 5, so what is this value? 5 by 2, what is this value? 5 by 3, सही है। So after 5 second, after 5 second आपको सेम वैल्यूज मिलेगी, आफ्टर 5 by 2 सेकेंड आपको सेम वैल्यूज मिलेगी, तो यानी कि ये 5 by 2 अगेन 5 by 2, तो मतलब आफ्टर 5 सेकंड फिर से आपको सेम वैल्यूज ये भी देगा आपको, ठीक है, बट इससे पहले भी ये अपना रिपीटेशन कर रहा है, बट हमको तो कॉमन टाइम पीरियड ढूंढना पड़ेगा ना पूरे कंप्लीट इक्वेशन का। फॉर कंप्लीट इक्वेशन वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड, कि सब लोग एक साथ कब रिपीट करेंगे चीजों को, ठीक है, तो जब ये रिपीट करेगा उससे पहले ये रिपीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसकी हमें सुननी पड़ेगी, इसका टाइम पीरियड बड़ा है। इसके लिए क्या होगा, ये जब 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, मतलब 5 by 3 5 by 3 5 by 3, तब ये फिर से अपनी सेम वैल्यूज पे आ जाएगा। समझ में आ रहेगा? तो दैट मीन्स व्हाट, द कॉमन टाइम पीरियड इज 5, मतलब ये वाला, तो 2 पाई बाय ओमेगा इज द राइट आंसर, राइट, अंडरस्टूड? हाँ, so T1 is biggest, so let me see the comment now if you guys have any doubt. All right, so everyone understood this now? No worries, I hope सबको समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। But the time period of whole equation will be affected, means it will increase the value since we are changing the time period of each interval. नहीं, देखिए वैल्यूज कोई अफेक्ट नहीं होने वाली है। देखो, मैं अगर इसको ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो, so for first one whose time period is 2 pi by omega, ये इस तरह का कुछ कर्व आएगा, ठीक है, एंड फॉर सेकेंड वन whose time period is pi by omega, ठीक है, whose time period is pi by omega, तो उसके लिए क्या होगा, देखो कर्व कुछ इस तरह से होगा, वो 2 बार रिपीट कर जाएगा, वो 2 बार रिपीट कर जाएगा। देखो उसके लिए कर्व कुछ इस तरह का होगा, ये एग्जैक्टली इसके नीचे लाई करेगा, ठीक है, एंड देन देखो इसने 2 बार रिपीट कर दिया, उसके बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड फॉर दिस वन अब मैं थोड़ा आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इट वुड बिकम मच बेटर नाउ, ठीक है, ठीक है, ये 3 बार हो जाएगा ऐसे, ठीक है, थोड़ी मैंने एक बार कम बनाया पल्स, बट थोड़ा देख लेना, ये 3 बार हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां पे रिपीटेशन कब होगा, आफ्टर दिस मच टाइम, यहां पर रिपीटेशन कब होगा, आफ्टर दिस मच टाइम, यहां पर रिपीटेशन कब होगा, आफ्टर दिस मच टाइम। ये थोड़ा कम होगा इससे, थोड़ा अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, बट देख लेंगे। ओके, सो अब देखिए तीनों एक साथ कब रिपीट करना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद में, आफ्टर दिस मच इंटरवल सब लोग फिर से रिपीटेशन स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आगे इसको कॉपी करते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ,
समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ऑल राइट. सो नाउ इट इज क्लियर हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड दिस. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब कंफ्यूजन काफी होती है. Sir, I did not understand how sin 2 omega t values. Please substitute, cancel and show me. Sin 2 omega t values? मैं आपको समझ में नहीं आया. देखिए जॉन, थोड़ा सा मैथ्स करना स्टार्ट कीजिए आप, वरना संकट में हो आप. sin 2 ओमेगा टी का टाइम पीरियड क्या होगा? देखो, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाउ, और टाइम पीरियड निकालने के लिए वॉट एवर इज द मल्टीपल इन टाइम स्मॉल टी, उससे डिवाइड कर दो. सो 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बिकम पाई बाय ओमेगा. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि मान लो किसी चीज का टाइम पीरियड है 10 सेकेंड, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका टाइम पीरियड है 10/2 5 सेकेंड, और तीसरे का टाइम पीरियड है 10/3. ठीक है, तो एक का टाइम पीरियड हो गया 10 सेकेंड, फॉर सेकेंड वन इट इज 5 सेकेंड, एंड थर्ड वन के लिए हो गया 10/3 सेकेंड. ठीक है, मतलब कि आफ्टर 10 सेकेंड इट विल रिपीट द वैल्यू, आफ्टर 5 सेकेंड इट विल रिपीट द वैल्यू, एंड आफ्टर 10/3 सेकेंड इट विल रिपीट द वैल्यू. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सब लोग एक साथ रिपीट कब करेंगे? मतलब सब लोग के लिए, मतलब ओवरऑल देखना हो तो रिपीटेशन कब स्टार्ट होगा? तो ये कहेगा मैं तो 10 सेकंड बाद रिपीट करूंगा, ये कहेगा मैं 5 सेकंड बाद रिपीट करूंगा, ये कहेगा मैं 10/3 सेकंड बाद रिपीट करूंगा. तो मैंने इससे पूछा कि भाई क्या तुम 10 सेकंड बाद रिपीट करोगे? उसने बोला हाँ बिल्कुल करूंगा. फिर मैंने इससे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि क्या तुम जब 3 बार तुम्हारा रिपीटेशन हो जाएगा 10/3 10/3 प्लस 10/3 प्लस 10/3, क्या फिर से तुम सेम जगह पे आ जाओगे? उसने बोला बिल्कुल आ जाऊंगा. तो इसका मतलब मैंने इससे पूछा कि देखो तीनों में कॉमन टाइम पीरियड क्या निकल के आ रहा है? 10 सेकेंड. बस यही आपका आंसर होगा. ठीक है, बस अब तो शायद समझ में आ गया होगा. इतना मतलब देसी भाषा में समझाया है, अब तो आई को समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि we have two particles, both are moving parallel to x-axis, we have two particles. Hi Santosh, you are late guys. Okay, we are studying simple harmonic motion कि both the particles are moving parallel to x-axis and they both have same amplitude and frequency. Though it's not given in the question, but मैं आपको बता रहा हूँ they have same amplitude and same frequency. ठीक है, राइट, मतलब तीनों सेम फेज में कब होंगे यही कहना चाहते हो? बिल्कुल सही बात है, थोड़ा टेक्निकल शब्दों में आपने अपनी बात को बयां कर दिया है. गुड. ठीक है, तो तीनों सेम फेज में क्या होंगे यही होना चाहता हूँ. ठीक, सेम पोजीशन मतलब. ठीक है, अब देखिए एट ए सर्टेन इंस्टेंट दे आर फाउंड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन अपोजिट साइड्स बट देयर वेलोसिटीज आर फाउंड टू बी इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट दिस इज ओरिजिन, पार्टिकल नंबर ए आपको कहीं यहां मिला, कहां पे? दिस इज पार्टिकल नंबर ए एंड दिस इज पार्टिकल नंबर बी. तो एट ए सर्टेन इंस्टेंट टी, कोई भी टाइम हो गया मान लो, ठीक है, पार्टिकल ए को जब मैंने देखा तो वो यहां पे था ऑन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, और पार्टिकल बी को देखा तो वो था ऑन द राइट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, जब मैंने उनकी वेलोसिटीज को देखा तो पार्टिकल ए का वेलोसिटी था इधर और पार्टिकल बी का वेलोसिटी था इधर, मतलब सेम डायरेक्शन में. ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स. आई विल रिपीट द क्वेश्चन. वी हैव टू पार्टिकल्स, बोथ आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, जैसे मान लो कोई लाइन ले लिया ऐसे एक्स एक्सिस, जैसे मान लो ये लाइन हो गया तो एक दोनों एक्स एक्सिस से पैरेलल मूव कर रहे हैं ऐसे, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा. ठीक है,
दे बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है, ओके. एंड व्हेन आई लुक एट दिस पार्टिकल्स, तो दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन. ए इज ऑन द लेफ्ट साइड, बी इज ऑन द राइट साइड, ठीक है, ओके. सो जब मैंने उसका वेलोसिटी देखा तो दे बोथ हैव वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन. आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द आंसर, ठीक है. तो बताइए कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स. नहीं, 0 इज रॉन्ग आंसर. संतोष, v1 इज इक्वल टू tan क्यू v/2, ये कौन से चैप्टर का आंसर आ रहा है? ऐसे मत करो भाई. संतोष हैज इंक्लूडेड वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इंक्लूड कर दिया संतोष ने. तो एक बार देख लो, आराम से हो जाएगा. नो, 1 इज रॉन्ग आंसर. एंगल आएगा ना यार, कुछ क्या कर रहे हो? आंसर कुछ एंगल आएगा. कुछ इनवर्स वगैरह में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी आंसर नहीं आने वाला. रॉन्ग आंसर. नहीं, 2 by 3 इज द रॉन्ग आंसर. आई विल रिपीट द क्वेश्चन. चलो थोड़ा सा आसान बना देते हैं क्वेश्चन को, कुछ वैल्यूज भी दे देते हैं. कि वी हैव टू पार्टिकल्स, दे बोथ आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जैसे मान लो एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, दे आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जब मैंने किसी इंस्टेंट टी पे देखा तो दिस पार्टिकल ए इज एट अ लोकेशन a/3, मतलब वो माइनस में हो जाएगा. सो यू कैन टेक दिस वैल्यू a/3, ठीक है. एंड व्हेन आई लुक एट दिस पार्टिकल b, उसको मैंने मिला तो बोला कि x इज इक्वल टू प्लस a/3, ठीक है. सो दिस पार्टिकल a इज एट माइनस a/3 एंड पार्टिकल b इज एट प्लस a/3. समझ में आ रहेगा, ठीक है. एंड देयर वेलोसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन, कि a भी इधर जा रहा है, b भी इधर जा रहा है, ठीक है. ऑलराइट, सो 2 पाई इज द रॉन्ग आंसर. नो. So this is the question कि what is the phase difference between the two particles? That's what you have to calculate. They have same frequency, they have same amplitude. तो एक hint दे देता हूँ क्वेश्चन के लिए कि take x is equal to a sin omega t, equation of particle number 1, and take x is equal to a sin omega t plus phi, equation of particle number 2. अब you have to calculate phi, ठीक है ना. तो अब कुछ सोचना पड़ेगा आपको. x की वैल्यूज डाल दो वहाँ पे, -a/3 प्लस a/3, और फिर कुछ आंसर निकालिए. Okay, so shall I solve this question now? I guess enough time is given. Sin inverse -1. No, that's wrong. ठीक है. चलिए, अब वो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मतलब काफ़ी आसान है, इतना कुछ टफ था नहीं, पता नहीं क्यों टाइम लग रहा था. देखो, करना क्या है आपको कि वी हैव टू पार्टिकल्स मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस. They have same frequency, same amplitude, phase difference is there in between these two particles, and at a certain instant particle number 1 is at a location -a/3 and particle number 2 is at a location plus a/3. सही है? Okay. So I'll write the equation. Let me use x is equal to a sin omega t is the equation of particle number 1, and for particle number 2 equation is
देखो x1 x2 कुछ होंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फाइव वन लेते हैं, यहाँ पे फाइव टू लेते हैं। मैं कहता हूँ क्यों इतनी मेहनत करनी, कि फेज डिफरेंस ही निकालना है, तो बस फाइव लिख दो ना यहाँ पे, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या है, -a/3 एंड फॉर x1 इट्स a/3। अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यू कैन टेक दिस वन एज a/3, दिस वन एज -a/3, ठीक है। तो मैं ऐसा लेके सोल्व कर रहा हूँ, आप थोड़ा अपोजिट लेके सोल्व कर लो, ठीक है, राइट। ओके, सो डू इट मास्टर, ऑलराइट। सो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लेंगे कैसे कैसे कैंसिल आउट होगा, ऐसे कैंसिल आउट होगा, ठीक है। ओके, नाउ you will get sin omega t as 1/3 and you will get sin omega t plus phi as -1/3, ठीक है। Okay, so this is sin omega t plus phi equal to -1/3. Now what we can say is you can use the sin formula here, sin a plus b, काफी भारी सा फॉर्मूला है कि sin a cos b plus cos a sin b, sin a that is omega t plus cos b, sin a cos b that is cos phi plus cos a sin b that is omega t, cos omega t sin phi, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू -1/3। अब देखो डाउट है तो पूछिए, डाउट है तो, राइट। अब देखो व्हाट इज sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी इज 1/3, तो क्या इस इक्वेशन में डाल सकता हूं मैं, sin ओमेगा टी इज 1/3। ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ sin ओमेगा टी हियर इन दिस इक्वेशन। और जो अच्छे बच्चे हैं वो sin ओमेगा टी से cos ओमेगा टी भी निकाल सकते हैं, कैसे, बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। So if you know sin square theta, you can calculate cos square theta. So I'm going to put the value of sin omega t 1/3 here in this equation and also value of cos omega t. तो देखिए -1/3 is equal to 1/3 cos phi, 1/3 cos phi plus what is cos omega t? Cos omega t will be square root of 1 minus sin square omega t. And what is sin square omega t? 1/9. So this will become square root of 1 minus 1/9 and that will give you square root of 8/9, ठीक है ना। And it will become square root of 8/3, 2 root 2/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। sin phi, right Samvit, so you can write 2 root 3 also. All right, so now again 3 will get cancelled out. How it will get cancelled out? ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या निकालना था अपने को, 5. नाउ यू हैव दिस इक्वेशन, अब तो सोल्व कर लोगे, कैसे, तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू स्क्वायर दिस इक्वेशन, ठीक है। और इसका लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ठीक है। और ये इक्वेशन याद रखना भाई, मैं हो सकता है आपसे पूछूं अभी, cos 5 प्लस √8 7 sin 5। तो इक्वेशन इज cos 5 प्लस √8 sin 5 and this is equal to 1 -1, ठीक है। Now I'm going to square this equation, ठीक है। If you square this equation, what you will get, cos square 5 plus 9 sin square 5, ठीक है, 8 sin square 5, sorry, 8 sin square 5 is equal to plus 2 root 8 sin 5 cos 5, sin 5 cos 5 is equal to 1, ठीक है। cos square 5 plus sin square 5 plus 2 root 8 sin 5 cos 5, यहां तक समझ में आएगा सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। नो डाउट अप टिल हियर, ठीक है। बट ऐसा करने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा करोगे तो एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगे,
तो बेटर होगा इसको ऐसे कर लो, कैसे, ऐसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 कोस 5 इज इक्वल टू -1 माइनस कोस 5। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि सॉरी दिस इज साइन 5, 8 साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर 5 प्लस 2 कोस 5, ठीक है, राइट। इसको मैंने इधर ले गया, अब मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, तो अब थोड़ा सा इक्वेशंस आसान हो जाएंगी। नाउ इफ यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोस स्क्वायर 5, 8 sin square 5, now I'm going to add 1 sin square 5 and subtract, so this will become 9 sin square 5 and you will have 1 9 sin square 5 here. अब you can take this sin square 5 on the right hand side, ठीक है, and what it will become, 9 sin square 5, this will go in the right hand side, it will become cos square 5 plus sin square 5, that is 1, ठीक है, so 1 is already there, it will become 2 minus 2 cos 5. रूट 8 तो बहुत पहले आ गया था, रूट 8 sin 5 is equal to 1 minus 1 minus cos 5. I am just squaring these two terms, ठीक है, okay, so what will happen now, 9 sin square 5 is equal to 2 minus 2 cos 5, okay, again I am going to write sin square 5 as 1 minus cos square 5, so 9 minus 9 cos square 5 इज इक्वल टू -2 cos 5, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक, एंड व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज 9 cos square 5 -2 cos 5 -9 ही रहेगा ना, 2, सॉरी इट इज 2, नहीं 9 ही रहेगा, ठीक है, 9, ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 0, ओके, एंड नाउ यू कैन यूज श्रीधराचार्य फॉर्मूला हियर, ठीक है, इफ यू यूज श्रीधराचार्य फॉर्मूला यू विल गेट cos 5 इज इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 81 माइनस 4ac 4 minus 4ac, 4 multiplied 9 multiplied 9, that will become 81 multiplied 4, that is 324 divided by 2a, that is 18, तो यहां से आपके पास cos 5 की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, ठीक है, समझ में आएगा। 2 किधर गया सर, कौन सा वाला 2 is here, this is minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, that is 18, तो 2 को मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, संबित, क्लियर, ऑलराइट, सो क्लियर दिस पार्ट। तो जो भी हो मैथमेटिक्स देख लेना आप लोग, तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो करना क्या है, आपको x दिया होगा, लास्ट लाइन वाला 2 सर, which one, I am writing cos 5, value of cos 5, श्रीधराचार्य formula कि x square minus 2x plus something constant equal to 0, so cos 5 is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, ठीक है, ये लिखा है मैंने। मैथ्स जो भी हो ऊपर नीचे कुछ हो गया वो देख लेना, बट फिजिक्स इसके पीछे क्या था कि you can write two equations, x is equal to a sin omega t and x is equal to a sin omega t plus 5, ठीक है, and after that what you have to do is you just have to put x equal to a by 3, x is equal to minus a by 3, okay, and if once you put x equal to a by 3 and minus a by 3, after that आपको sin ओमेगा t का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखना है, फिर तो मैथ्स है, हो सकता है कुछ एक दो स्टेप में ऊपर नीचे हो गया होगा, देख लेंगे। कौन से लाइन वाला बोल रहे हो आप, दिस वन, ओके, यहाँ पे 2 था ना, ओके, दिस 2 यू आर सेइंग, सो दिस विल बिकम 7, अभी ठीक है, 9 minus 2 7, राइट, 9 minus 2 7, सो अभी इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9 cos स्क्वायर 5 minus 2 cos 5 plus 7 minus 7 सॉरी,
तो अभी आप इसको सोल्व कर सकते हो कि माइनस बी दैट इज 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac. सो 36 मल्टीप्लाइड 7, जो भी मल्टीप्लीकेशन आए लिख लो. नाउ ओके, हाउ 7? बिकॉज दिस साइड यू विल हैव 9. If you write this as 1 minus cos square phi, you will get 9 minus 9 cos square phi, and already you have 2 here on the right hand side. It will become 9 minus 2 7. ठीक है, क्लियर? ओके, चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो काफ़ी करना है. हाउ यू गॉट 7? वंस अगेन देखिए, ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 9 मल्टीप्लाइड 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई. ठीक है, so this you will get 9 minus 9 cos square phi. So this is the 9 cos square phi term. ठीक है, and this is 9 here, and on the right hand side you have 2. So 9 को मैंने subtract कर दिया 2 से, मैं इसको इधर ले गया, this will become 7. ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन और करने हैं, अभी नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे. ठीक है, तो सेशन इस पे काफ़ी होने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे. चलो आज के लिए फिर इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच, गुड नाइट.